vectors as well as anti-parallel vectors. Okay, so it's clear. So all of us are good. See here, in this class we will start with zero vectors. Here it's a very C part root 125. Okay, C part answer is under root 125. Guys, I hope that was your assignment, so you must be able to solve that. Okay, एक काम करते हैं, वेरिफिकेशन हम बाद में शुरू करेंगे बिकॉज टुडे वी हैव स्टार्टेड लेट. सो लेट्स डू वन थिंग. एक काम करते हैं बच्चों, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन आगे शुरू करते हैं, बाद में उसको वेरीफाई कर लेंगे. क्लियर? ओके गाइस, सो सी हियर, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग दैट इज जीरो वेक्टर. राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग दैट इज जीरो वेक्टर. ओके बच्चों, यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हो गया. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो वेक्टर? सी सबसे पहले ध्यान दो, जीरो वेक्टर का बच्चों मतलब क्या होगा. इट सिंपली मींस द मैग्नीट्यूड विल बी जीरो. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ जीरो वेक्टर. देखो ध्यान से, सपोज करो एक वेक्टर है हमारे पास a which is equals to 5 I cap and another vector b that is equals to minus 5 I cap. And see here what will happen if I add the two vectors 5 I cap minus 5 I cap. Answer is 0. See how to realize zero vector. मैंने एक वेक्टर चूज किया प्लस 5 I cap, सेकंड वेक्टर I have chosen as minus 5 I cap. And when I added the two vectors, the answer comes out to be 0. Now let me ask you a very simple question. बच्चों ये जो zero आया है, what do you call it? This zero is a vector or scalar? Okay, I can see 57 users are there. Just answer me like this zero would be a vector or scalar. Okay, Rishta is telling me vector, Shubham is telling me scalar. Okay. Sound is not clear. Dipanshu beta अपने पेज को refresh कर दो because for rest of the students sound is clear. Okay, voice is not clear. Just a minute. अब बताओ जरा, थोड़ा सा मैंने sound बढ़ा दिया है. Just tell me right now it's clear or not. Vector, vector. Okay, right now vector. Okay, that's good, that's good. So see here, maximum students are telling me like, what about this? Is it a vector or a scalar? Answer is it's a vector quantity. हमेशा बच्चों ध्यान देना, whenever you add or subtract two vectors, always remember whenever you are adding or subtracting two vectors, the final outcome will also be a vector. दो वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर हमारा कभी भी स्केलर नहीं हो सकता. आंसर हमेशा वेक्टर होगा. क्लियर गाइस? ठीक है. अब यहाँ पर देखो जीरो वेक्टर का मतलब क्या होगा. सी हियर, इफ आई राइट डाउन अ वेक्टर a like 0 into I cap plus 0 into j cap plus 0 into k cap. What do you mean by this? 0 into I cap, 0 into j cap plus 0 into k cap. So if you see its x component is 0, y component is 0 as well as z component is also 0. Clear guys? ठीक है, समझ में आ रहा है. जो भी ये वेक्टर है इसका x कंपोनेंट भी 0 है, y कंपोनेंट भी 0 है as well as z कंपोनेंट भी 0 है. क्लियर गाइस? तो इस तरह के वेक्टर को क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर. सो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ जीरो वेक्टर? x कंपोनेंट शुड बी 0, y कंपोनेंट भी 0 एंड z कंपोनेंट शुड आल्सो बी 0. ओके, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूं, सी हियर, इफ आई कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, क्या फॉर्मूला था बच्चों? अंडर रूट I component square plus under root j component square plus under root k component square. So if you add the values, your final answer is 0. Okay. तो जीरो वेक्टर की बच्चों डेफिनेशन क्या होगी? जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 0. Okay, let me ask you, what about direction? What do you think? Zero vector, first thing is confirmed. Like for zero vector, the magnitude will be equals to 0. Okay guys, what about direction? Anyone of you? Can you tell me what should be the direction of the zero vector? Zero. Okay, Dhaneshwari is telling me 0. What about rest of the students? Hemant is also telling me 0. Okay, so Rishita, Ruchika, Aryan. Okay, I can see number of users are 60. Very good guys. Just keep providing me the answers. Very good. Very nice. Okay, so see here, maximum students are telling me the direction is 0. पहली चीज बच्चों यहाँ पे ध्यान दो. See here, ठीक है, it's okay. I got the answers. Maximum students are answering me like the direction is 0. तो बच्चों एक चीज ध्यान देना, फर्स्ट थिंग,
जीरो इज नॉट अ डायरेक्शन। क्लियर गाइस? डायरेक्शन का मतलब क्या है वेक्टर में? डायरेक्शन का मतलब वेक्टर में आइदर ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन। क्लियर? या इनके बीच में कहीं, दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन। और इन सिंपल वर्ड्स हम क्या कर सकते हैं? इफ वी चूज एनी एक्स वाई जेड वेक्टर, सपोज दिस इज आवर वेक्टर ए एंड दिस इज द एंगल थीटा, तो वेक्टर की डायरेक्शन का सिंपल सा मतलब है द एंगल ऑफ द वेक्टर विद द एक्स एक्सिस। लेट मी रिपीट वंस अगेन, फ्रॉम व्हिच एक्सिस? द एंगल ऑफ द वेक्टर विद द एक्स एक्सिस। ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? ओके, फ्यू स्टूडेंट्स आर टेलिंग मी, ओके वेरी गुड, वेरी नाइस, हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्शन? हिमांशु, आर्बिट्री डायरेक्शन। ओके, दैट्स राइट। See here guys, Himanshu answer right है। It's arbitrary. Arbitrary means it can be, it's not possible to find out the direction. Clear है? और in simple words हम क्या कह सकते हैं? Direction is unknown. Clear हो गया? Especially Himanshu, Chaitanya and okay, Chaitanya see है। बच्चों देखो हम क्या कहेंगे? Zero vector is a vector whose magnitude is zero and direction is unknown or arbitrary. Clear guys? Okay, so just write down magnitude equals to 0 and direction is unknown. Okay, zero vector is a vector. Read zero vector follow the, every vector follows the direction of vector law of addition. But see here, because zero vector में हमें direction का पता नहीं होता, that's why बच्चों हम इसको ऐड नहीं कर सकते। Clear? Like 0 plus 0 will be equals to 0. Direction is unknown. Okay guys, yes. Okay, see here, basically what is going on? Zero vector में बच्चों हमें एक दो चीजें ध्यान रखनी है। देखो इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है? क्या है जीरो वेक्टर? एक ऐसा वेक्टर जिसका x कॉम्पोनेंट जीरो है, y कॉम्पोनेंट जीरो है, एज वेल एज z कॉम्पोनेंट जीरो है। ठीक है? और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? अननोन। और मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? जीरो के। क्लियर गाइस? ओके। Yes, students, just type it fast so that we can move forward. I think you are trying to say something. Okay, guys. So if we are done with zero vector, right now we can proceed with position vector. Clear, guys? Okay. Let me see the chat box. What I'm saying, sir, audio and video are breaking. Okay. Just a minute. Suresh. निशांत इट्स क्लियर। सुरेश बेटा अपने पेज को रिफ्रेश कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन है दैट इज 100 Mbps 100 Mbps का कनेक्शन है, तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। वी हैव अ वेरी हाई स्पीड ओवर हियर। आप अपने कनेक्शन को एक बार चेक करें। ठीक है? मैंने पहले भी कहा बच्चों करना क्या है, देखो अगर तुम्हें लगता है कि ऑडियो या वीडियो कुछ ब्रेक हो रहा है तो पेज को अपने रिफ्रेश कर लो। ओके गाइस? ओके, राइट नाउ नेक्स्ट हेडिंग दैट इज पोजीशन वेक्टर। See here, next thing is position vector. Try to understand. अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है? पोजीशन वेक्टर मतलब क्या? ठीक है? ये किसी पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड आउट करता है। पोजीशन वेक्टर सिंपली मींस इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन राइजेस, कहां पे पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा? आंसर इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई नई चीज नहीं है। ओके, यस बेटा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम अभी आगे चल के देखेंगे, पहले कुछ बेसिक चीजें कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, अभी ये डेफिनेशन खत्म होगी, देन वी विल स्टार्ट विद वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओके गाइस? सो सी हियर, सपोज करो ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, एंड वी हैव अ पॉइंट P whose coordinates are given as x, y, z। ठीक है? तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हो गया? जो भी ये P पॉइंट है इसको हम कनेक्ट करेंगे ओरिजिन के साथ। See, whatever is this P point, इस P point को हमने origin के साथ कनेक्ट कर दिया। Clear guys? Look at the board. With unpredictable direction. Yes, Anshu, you are absolutely right. Zero vector is a vector whose magnitude is zero, but unpredictable or arbitrary or unknown direction. Clear guys? Okay. तो ये देखो, ये हो गया अपना point P, and यहाँ पे मैंने सिंबल लिखा R। एक चीज ध्यान रखना, RP stands for what? RP stands for position of particle P. Clear guys? RP का मतलब क्या होगा? Position of the particle P. See here. अब यहाँ पे देखो क्या बताया मैंने? P का पोजीशन वेक्टर अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो 0 से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब 0 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0 0। So what will be the position vector of point P? RP
सी है पोजीशन वेक्टर भी क्या है बच्चों, एक वेक्टर ही है और वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फाइनल माइनस इनिशियल आई कैप, फाइनल माइनस इनिशियल जे कैप प्लस फाइनल माइनस इनिशियल के कैप. सो व्हाट आई विल राइट डाउन, x minus 0, so this is x into I cap, y minus 0 plus y into j cap plus z minus 0 plus z into p. Clear? Just copy up to here. Simply write down position vector simply represents the position of the particle. That's all. बेटा z represents z कोऑर्डिनेट. रिश्ता यहाँ पे ध्यान दो, जो भी ये आपका पॉइंट P है इसके तीन कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एज वेल एज z कोऑर्डिनेट. rp, ओके बच्चों यहाँ पे देखो rp का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. सी है rp को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, rp रिप्रेजेंट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. ओके, rp का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. क्लियर गाइस? ओके, मनस्वी आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया, राइट? अच्छा एक चीज और देखो बच्चों, हर एक चीज का एक पर्टिकुलर रूल होता है. क्लियर हुआ? ठीक है, जैसे अगर आपको फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हो, F से. वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है तो हम वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं. इन द सेम वे हम पोजीशन वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर बाय अ सिंबल rp. ठीक है, तो थ्रू आउट द फिजिक्स और एंटायर फिजिक्स जहां कहीं भी तुम्हें पोजीशन वेक्टर मेंशन होगा उसको हमें किससे रिप्रेजेंट करना है, r से. r इज अ सिंबल फॉर पोजीशन वेक्टर. अच्छा तो व्हाट हैपेंड बेटा, हर्ष? ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, सी है, ओके यू आर डिस्कनेक्टेड. बहुत ही सिंपल है बेटा, चलना है यहाँ पे देखो, ये जो P पॉइंट है इसको हमने ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, P एक ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z. और किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है हम ओरिजिन से उस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, जो वेक्टर बनता है उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर. अब इस rp को हम कैसे लिखेंगे, x minus 0 that is xi cap, y minus 0 that is yj cap, z minus 0 that is z times k cap. Small r, Suresh beta, it is always small r. Yes, yes, definition ही बता रहा हूँ मैं. Position vector is a vector which represents the position of a point with respect to origin. Position, okay guys, just write down. Position vector is a vector. Write down the definition. Position vector is a vector which represents the position of point P, which represents the position of point P with respect to origin. Position vector is a vector which represents the position of point P with respect to origin. और एक चीज और ध्यान रखना है, डेफिनेशन लिखने का बच्चों यहाँ पे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्यों कहा मैंने, बिकॉज आपका जो जेईई या नीट का एग्जाम है उसमें डेफिनेशन नहीं आती है. इट्स नॉट लाइक योर बोर्ड एग्जाम, यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी है. डेफिनेशन हैज टोटली जीरो वैल्यू. तुम्हें समझना है कि पोजीशन वेक्टर एक्चुअली होता क्या है, समझ में आया? और समझने के लिए मैंने क्या बताया, अगर एक पॉइंट P है तो ओरिजिन से उस पॉइंट को कनेक्ट कर दो, जो वेक्टर बनेगा उसी को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर. दैट्स ऑल. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द डेफिनेशन. इसलिए हम लोग जरा डेफिनेशन वगैरह के चक्कर में पड़ के अपना टाइम बर्बाद नहीं करते. एज यू कैन रिमेंबर, जब मैंने वेक्टर तुम लोगों को बताया था, मैंने क्या बताया, वेक्टर इज अ क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा है. वेक्टर आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड इट इज ऑब्लाइज्ड टू फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. नॉट लाइक दिस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, लिखने का कोई मतलब नहीं है, राइट? You don't need to write down the definition. That is totally wastage of time. You should know, like you should
अंडरस्टैंड, समझ में आना चाहिए और उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व होने चाहिए। दैट्स ओके गाइस, सो आई होप माय मैसेज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? क्योंकि जब बच्चों एग्जाम में आ रहे नहीं है तो डेफिनेशन लिख के करेंगे क्या हम लोग, है ना? अपने को तो कंसेप्ट समझना है और उसके ऊपर न्यूमेरिकल समझना है। दैट्स ऑल। ओके बच्चों, चलो ठीक है। दैट एक्चुअली मनस्वी, ओके, सो एवरीबॉडी गॉट इट। सो सी हियर वी हैव कंप्लीटेड, ओके, zero vector as well as position vector. And now there is another term which is known as displacement vector. चलो भाई आप देख लो, लॉजिक सबके सेम है, कुछ भी नया नहीं है, सब पुरानी चीज है। नेक्स्ट नेम इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसका मतलब क्या होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल। पार्टिकल को एक जगह से पिकअप किया और दूसरी जगह पर ड्रॉप कर दिया, तो पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बच्चों क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। क्लियर? सपोज if classes are open और आप अपने घर से अगर क्लासेस तक आते हैं कोचिंग तक, तो you are displaced from your home up to the class, right guys? तो सपोज करो, okay, one place to another, yes ma'am, that is मतलब ठीक है, one place to another, that is very nice definition, ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत आसानी से समझ में आती है। You take one object from one place to another place, the vector form is displacement vector. Clear? That's very good. Okay, देखो हेमंत को समझ में आ गया फटाफट, उसने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया। सपोज करो ये यहाँ वाले पार्टिकल था आपका और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x1, y1 एंड z। हमने क्या किया बच्चों? इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया और इस पार्टिकल को यहाँ पे लेके आया, सच दैट इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए? इट इज x2, y2 एंड z। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा भाई? दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज आवर एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को हमने एंडिंग पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, तो जो वेक्टर बनेगा उसी को मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर x। सी फर्स्ट पार्टिकल वाज प्रेजेंट एट पॉइंट P1, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट? x1, y1 एंड z1। फिर पार्टिकल कहां पे आ गया? सेकंड पॉइंट P2 पे। कोऑर्डिनेट बच्चों पे क्या आ गया? x2, y2 एंड z। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को जब हम एंडिंग पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो देखो एक वेक्टर यहाँ पे बन रहा है और इसी वेक्टर को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो हाउ टू रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? सी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर x। अब एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो एक वेक्टर ही ना। ओके गाइस, आयुष बेटा अपने माइक को म्यूट कर लो। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों एक वेक्टर ही है। तो वेक्टर को लिखने का रूल क्या बताया था मैंने? फाइनल माइनस इनिशियल आई कैप, फाइनल माइनस इनिशियल जे कैप, फाइनल माइनस इनिशियल के कैप। जस्ट राइट इट डाउन लाइक दिस। व्हाट इज फाइनल x? दैट इज x2 minus x1. व्हाट इज द डायरेक्शन? I कैप। देन y2 minus y1, डायरेक्शन इज j कैप। देन व्हाट आई विल राइट डाउन? z2 minus z1, डायरेक्शन इज k। कॉपी अप किया, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। बेसिकली हम लोग एक वेक्टर को लिख रहे हैं। ओके गाइस, आई होप इट्स क्लियर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो हियर गाइस, अप टू हियर। ओके, चलो ठीक है। सो आई होप सबने कॉपी भी कर लिया होगा। एंड सी अगर यहाँ तक अपने को क्लियर हो गया, राइट नाउ वी कैन कम टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। चलो बच्चों, वेरी गुड। ओके, दिवांशु इज लुकिंग वेरी हैप्पी। That's a nice thing. Okay guys. Yes, Mr. Copy. And after this, all the students will write down vector law of addition. Okay. देखो, पहले हमने वेक्टर के बारे में समझा, वेक्टर के बच्चों टाइप्स के बारे में समझा, and once we are familiar with types of vectors, right now we can go for vector law of addition. Okay guys, right. Copy. So I hope everybody is copied. So नेक्स्ट सेक्शन जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, दैट विल बी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओके, चलो भाई करके देखते हैं फटाफट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ध्यान देना, कुछ समझ में जाए तो पूछना। सर इट इज सेम एज वेक्टर फॉर्मूला। यस यस सर, इट इज सेम एज अ वेक्टर फॉर्मूला, राइट? क्योंकि सब चीज तो वही है ना, शुरुआत तो वही से हुई थी। राइट डाउन नेक्स्ट अगेन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। Okay guys, try this. What do you mean by vector law of addition? Okay, ध्यान दो। देखो, simply just like numbers,
सपोज करो बच्चों अगर मैं कहता हूँ ऐड टू नंबर्स 2 and 4, ठीक है, तो यू कैन आंसर मी इमीडिएटली लाइक 2 + 4 = 6. Add two numbers 10 and 10. You can answer me immediately like 10 + 10 = 20. Clear guys? Okay. तो नंबर्स को ऐड करना बहुत ही इजी होता है. Why? Because क्योंकि नंबर्स में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, नंबर्स में डायरेक्शन नहीं होती. Clear? So it's very easy to add two numbers. But if you are trying to add two vectors, ठीक है, तो वेक्टर से बच्चों प्रॉब्लम क्या है? वेक्टर में तुम्हें मैग्नीट्यूड तो ऐड करना है, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें डायरेक्शन भी ऐड करनी है. क्लियर? So that's why it's slightly different in comparison to addition of vectors. कैसे different होता है? Look at the book. यहाँ देखो बच्चों क्या है? We have two vectors. First vector is P, जो किस डायरेक्शन में? X डायरेक्शन. और सेकेंड वेक्टर यहाँ पे अपना Q, और Q वेक्टर किस डायरेक्शन में? Q वेक्टर का एंगल with the x axis is given as θ. Just copy up to here. We have first vector P and the second vector Q. P की डायरेक्शन x के लॉन्ग है, और जो Q वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बच्चों किसके लॉन्ग है? x एक्सिस से थीटा एंगल पे. And what we are supposed to do? We are supposed to add these two vectors. कैसे ऐड करेंगे? For that we have few particular steps. Okay. चलो write down step 1. अब इसको लिखना पड़ेगा, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है? Write down step 1. Okay. Write down step 1. Step 1 बच्चों अपना क्या हो जाएगा? See here. Step 1 would be draw the first vector. Draw the first vector. This is our step number 1. Okay. मतलब क्या है? We can start with vector P or we can start with vector Q. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर इन दोनों को मुझे ऐड करना है तो ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर का मतलब बच्चों क्या हो गया? या तो मैं पहले P को ड्रॉ करूंगा, या फिर मैं किसको ड्रॉ करूंगा? Q को ड्रॉ करूंगा. चलो तुम लोग बताओ किसको ड्रॉ करें पहले? P को ड्रॉ करें या Q को ड्रॉ करें? ओके गाइस, P को. चलो ठीक है, आर्यन इज टेलिंग मी कि पहले P से शुरुआत करते हैं. ओके एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट विद वेक्टर P. तो हमने P को ड्रॉ कर दिया. ठीक है, दिस इज आवर वेक्टर P. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. क्लियर? नाउ कम बैक टू स्टेप 2. फर्स्ट स्टेप हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ लेट्स कम बैक टू द स्टेप 2. ठीक है, अब स्टेप 2 तुम्हारा क्या कहता है? जहां से भी तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर एंड हुआ है वहीं से हमें सेकंड वेक्टर ड्रॉ करना है. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ द सेकंड वेक्टर. बट कंडीशन क्या है बच्चों? एंगल मस्ट बी सेम. ठीक है, सो वी विल से draw the second vector such that its angle, draw the second vector such that its angle with x axis remains same. Okay, see here. ठीक है, यहाँ क्या चल रहा है? पहले फर्स्ट वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया, और फर्स्ट वेक्टर का जो एंड पॉइंट है वहां से ड्रॉ द सेकंड वेक्टर such that its angle with the x axis remains same. Now see here, फर्स्ट वेक्टर बच्चों कहां पे एंड हुआ? P के हेड पे. यहां पर P का हेड है तो यहां पे एंड हुआ. क्लियर गाइस? ओके, मींस जो सेकंड वेक्टर की शुरुआत करेंगे हम इस एंड पॉइंट से करेंगे, बट द कंडीशन इज एंगल मस्ट बी सेम. क्लियर? यहां पे देखो सेकंड वेक्टर का x के साथ एंगल कितना है? दैट इज थीटा. सो व्हाट आई विल डू, दिस इज आवर x एक्सिस. इस x एक्सिस के साथ थीटा एंगल में मैंने सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर दिया एंड दैट इज आवर वेक्टर Q. क्लियर? देखो सेम एंगल पे मैंने सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया. एंड व्हाट विल बी द स्टेप 3? स्टेप 3 विल बी connect starting point to the ending point. Connect starting point to ending point. Okay. नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप सभी लोग ध्यान से देखो. लास्ट स्टेप बच्चों अपना क्या हो गया? लास्ट स्टेप ये हुआ कि अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट को कनेक्ट करना है किसके साथ? एंडिंग पॉइंट. नाउ सी हियर, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज आवर एंडिंग पॉइंट. स्टार्टिंग को हमने एंडिंग से कनेक्ट कर दिया, समथिंग लाइक दिस. और यही जो वेक्टर तुम्हारा आएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज आवर रिजल्टेंट वेक्टर whose value will be given as p plus q. See it.
पहले फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, सिंपल वर्ड्स को देखो रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, फर्स्ट वेक्टर बच्चों जहां से एंड हुआ वहां से सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया, देन व्हाट वी हैव डन, वी हैव कनेक्टेड द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट, क्लियर। और ये जो वेक्टर बना, इसी वेक्टर को मैं कहूंगा रिजल्टेंट वेक्टर आर, जिसकी वैल्यू होगी p प्लस q के इक्वल। See here, up to here. And what is this angle? This particular angle, let us assume, is so here, yes. Okay, everybody just copy up to here and tell me if you face any problem. देखो बहुत ही important है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. So just look at the board, try to understand all the steps, and if you have any problem, just let me know. Understood. That's good, Tanvi. Very nice. Okay, what about rest of the students? Okay. Aryan, I will repeat it, no problem. Okay, Dipanshu, very nice. Very nice. Alpha. Yes, this is alpha. This is alpha. Right. This is alpha. Right, yes, that is alpha. Yes, right. पहले काम करो, पहले सभी लोग एक काम करो बच्चों, पहले सभी लोग इसको फिनिश करो, ठीक है। फिर एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ, as I told you, ठीक है। क्योंकि इसमें बच्चों देखो ये नंबर्स की तरह नहीं है, नंबर्स बहुत सिंपल है, 2 + 4 = 6, क्लियर। लेकिन जब हमें वेक्टर्स को ऐड करना होता है, we have to look for direction also. Okay, see here. Let me do the repetition. रिश्ता बेटा अल्फा इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद द एक्स एक्सिस। देखो जैसा कि मैं p की बात करता हूँ, p एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन है x, q एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन x एक्सिस से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल। वैसे ही जो रिजल्टेंट है वो भी एक वेक्टर है और उसकी भी एक डायरेक्शन होगी, तो हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट अपना एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन x एक्सिस से कितने एंगल पे है, अल्फा एंगल। ओके शुभम बेटा हम लोग मैग्नीट्यूड के ऊपर बाद में आएंगे, पहले वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सीख लेते हैं, एंड वंस वी आर कंफर्टेबल विद वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, फिर मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है दैट वी विल सी प्रॉब्ली इन नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा ध्यानेश्वरी, ओके श्योर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब चलो बच्चों सभी लोग एक बार फिर से हम लोग ध्यान से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का रूल क्या है, यहाँ पे अपने पास दो वेक्टर थे, फर्स्ट वेक्टर वाज p, सेकंड वेक्टर वाज q। p जो वेक्टर था किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन, q जो वेक्टर है ये तुम्हारा x डायरेक्शन से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल, ठीक है। तो रूल क्या बताया मैंने, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, सो दैट्स व्हाई मैंने पहला वेक्टर ड्रॉ किया p, किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन। रिमेंबर व्हेनेवर यू आर फॉलोइंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते बच्चों, क्लियर हुआ। तो सी है p पहले x डायरेक्शन में था, मैंने x डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया। फिर स्टेप 2 क्या है अपना, ड्रॉ द सेकंड वेक्टर such that its angle with the x axis remains same। अब यहाँ पे देखो सेकंड वेक्टर जो कि अपना q है, इसका x के साथ एंगल कितना है, x के साथ बच्चों एंगल थीटा है। तो जहां पे फर्स्ट वेक्टर फिनिश हुआ वहां से हमने सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया q, यहाँ पे देखो एंगल क्या है, थीटा। आफ्टर दिस व्हाट इज द लास्ट रूल, कनेक्ट द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। यहां से हमने शुरू किया था, यहाँ पे ये एंड हुआ तो हमने स्टार्टिंग से एंडिंग को कनेक्ट कर दिया, और ये जो वेक्टर बनेगा दिस इज नोन एज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स p एंड q, क्लियर गाइस। और इस रिजल्टेंट का x के साथ ये जो एंगल है, दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद द x एक्सिस इज सेट एज अल्फा। मतलब तो यहाँ तक क्लियर, ओके चलो अब इसी चीज को फिर से मैं रिपीट करता हूँ बट इन अ डिफरेंट मैनर। अच्छा लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन गाइस, सपोज करो मैं p से नहीं शुरू करता हूं, सपोज करो मैं q से शुरू करता हूं, इन दैट केस व्हाट विल हैपन टू द रिजल्टेंट, वो सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। ओके गाइस आई एम जस्ट लुकिंग एट द चैट बॉक्स, सी हियर वंस अगेन व्हाट इज द क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ p अगर मैं q से शुरू करता हूं तो व्हाट विल हैपन टू द रिजल्टेंट, इट विल बी सेम और डिफरेंट। ओके ओके राइट मोहिनी आई थिंक same, okay, which guy is telling me change, sir we can connect the starting point of second vector with the ending, no we can't do that, rule is simple, जहां से शुरुआत की है वहां से एंड पॉइंट को कनेक्ट करना है।
Same. Okay, so see here the maximum students are telling me like it will be same, and Mohini your answer is also right. चलो बच्चों चेंज नहीं होगा, ध्यान दो। क्यों नहीं चेंज होगा? इसका रूल बच्चों सिंपल है। आई थिंक ये रूल आपने पढ़ा होगा, P plus Q equals to Q plus P। ये बड़ा like 2 plus 4 equals to 6। सिनेरियो चेंज करो, 4 plus 2 डिफरेंट नहीं होता, सेम ही रहता है। क्लियर है? सो इन द सेम वे P वेक्टर P plus वेक्टर Q must be equals to वेक्टर Q plus वेक्टर। लेकिन इसको हम शो कैसे करेंगे? द टास्क इज यस ओके राइट। इसको बच्चों हमें प्रूव कैसे करना है, इसको लिए ध्यान दो। फिर से मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ही फॉलो करूंगा। थोड़ा ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, या एक काम करता हूं मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं जहां पे रूल्स लिखे हैं, या एक काम करते हैं यहीं ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सपोज करो Q से अगर शुरू करते हैं तो रूल अपना क्या था? सी द फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर। व्हाट इज आवर फर्स्ट वेक्टर? दैट इज Q। तो मैंने फर्स्ट वेक्टर Q ड्रॉ किया, समथिंग लाइक दिस इज आवर फर्स्ट वेक्टर। अच्छा, Q का x के साथ एंगल अभी भी कितना है? थीटा। क्लियर है? इसके बाद क्या था? ड्रॉ द सेकंड वेक्टर सच दैट इट्स एंगल विद द x एक्सिस रिमेंस सेम। अब Q जहां पे इंड हुआ, Q यहां पे इंड हुआ, यहां से सेकंड वेक्टर ड्रॉ करूंगा मैं P। P की डायरेक्शन बच्चों देखो किधर है? P की डायरेक्शन है x के नाम, यहां से मैं नेक्स्ट वेक्टर ड्रॉ करूंगा P। ठीक, देखो दोनों के एंगल सेम है। Now what was the last rule? Connect the starting point to the ending point। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये क्या है? This is our starting point and this is our ending point। So what I am doing? I am connecting the starting point to the ending point, and this will be our resultant R, whose value will be P plus। अब यहाँ पे देखना, when जब तुम इसको ड्रॉ करोगे तो सपोज करो यहाँ पे R की लेंथ अगर 2 मीटर है तो यहाँ पे भी R की लेंथ 2 मीटर आएगी। अगर यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ पे जो तुम्हारा एंगल आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। हियर वी हैव एंगल अल्फा, तो यहाँ पे भी अपना ये एंगल कितना आएगा? मींस जो भी अपना रिजल्टेंट है ना तो उसकी लेंथ चेंज होगी और ना ही डायरेक्शन। सेम रहेगा। यस, रिजल्टेंट वुड बी सेम दीपांशु। क्लियर? यस, व्हाई? ओके, रिजल्टेंट विल बी सेम, क्योंकि हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मैंने बच्चों क्या कहा? मैंने सिंपली कहा आप 2 plus 4 करें या फिर 4 plus 2 करें, दोनों केसेस में आपका आंसर कितना है? 6 है। क्लियर है? ओके, जस्ट कॉपी अप टू हियर। सो आइदर यू डू 2 plus 4 or you do 4 plus 2, in both the cases your answer will be equals to 6। Okay, so everybody just look up to here. So guys, first tell me, tomorrow we have class or holiday? अच्छा, डोंट नो। ओके, तो मे भी क्लास रह सकती है, क्योंकि अगर हॉलीडे होता तो अभी तक तुम लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एक्चुअली इवन आई डोंट नो लाइक टुमारो इज हॉलीडे और क्लास। या जस्ट अ मिनट। Okay, Harsh is telling me holiday and Chaitanya is telling me class। By the way, what do you want guys? Like कल अपनी क्लास होनी चाहिए या हॉलीडे होना चाहिए? Okay, like maximum students are favoring class, so that's a good thing। Very good। Okay, 9 to 10। अच्छा, 2 days holiday। Okay, right। Actually tomorrow is class। Okay, ठीक है। So because I don't know, so it's possible कि कल आपकी क्लास हो। Okay, चलो ठीक है। तो अभी तक मुझे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, so I'm not clear। Okay, बस मैं ये पूछा था लाइक what do you want guys? मतलब तुम लोगों को क्या चाहिए? क्लास चाहिए या हॉलीडे चाहिए? हॉलीडे। ओके, ठीक है सर। बंदर इज टेलिंग मी ऑनेस्ट आंसर। रिया आल्सो वांट हॉलीडे, राइट ना? हाँ, राखी की भी छुट्टी तो थी नहीं यार, है ना? और कल तो 15 अगस्त है। नहीं बेटा, मेरी मर्जी नहीं है, डजंट डिपेंड अपॉन मी, लाइक टुमारो वी हैव क्लास और हॉलीडे। ओके, टेस्ट के बाद यस, हाँ अंकित बेटा क्या कह रहा है? अच्छा, हॉलीडे होना चाहिए। चलो जस्ट टॉक टू मिलिंद सर है टेस्ट टाइम। ओके बच्चों, देखो टेस्ट से रिगार्डिंग जो भी अपडेट है वो मिलिंद सर आपको प्रोवाइड कर देंगे।
because today is Friday, so we still have 2 days. So Milind sir will inform you. बस वाली लास्ट क्लास में तुम लोग क्या बताया था, अपना ऐप डाउनलोड कर लेना IT पॉइंट का प्ले स्टोर से, और उस ऐप से रिलेटेड जो भी तुम्हारी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो मिलिंद सर आपको सेंड कर देंगे. ओके गाइस, ओके पिक्चर देखिए. राइट हॉलीडे. ओके तो यस हाँ आईडी बेटा आपको हिमांशु. ओके हिमांशु बेटा आईडी आपको टेस्ट से पहले सेंड कर दी जाएगी. मिलिंद सर उसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं. आई थिंक यही तो है, वो आपको आईडी यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे. अभी उससे रिलेटेड तुम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आफ्टर द क्लास. रिश्ता बेटा दैट इज नो थ्योरी. लाइक अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेफिनेशन आएगी कि लाइक व्हाट इज द स्टेट लाइन, तो ऐसा कुछ नहीं होगा. There will be 25 questions और 25 questions ही है, और every question का हर एक सिंगल ऑप्शन होगा. 25 questions will be there in physics. राइट IIT पॉइंट ऐप. हाँ तनु बेटा IIT पॉइंट ऐप है, बस प्ले स्टोर में जाकर के IIT पॉइंट टाइप कर देना, तुमको ऐप मिल जाएगा. ओके राइट. तो बच्चों देखो जो टेस्ट है उसमें 25 questions will be there in your physics section. And all the question will be based upon numericals. Okay, theory नहीं होगी उसमें बिल्कुल. Right, success guaranteed. Okay. बेटा सक्सेस तो गारंटीड है, बट यू गाइस हैव टू डू हार्ड वर्क आल्सो. ठीक है, लाइक जो भी क्लासेस में आपका करवाया जा रहा है वो पूरा का पूरा तुम लोगों को कंप्लीट करना है, और टेस्ट में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है. 100% यू विल बी सक्सेसफुल. एग्जैक्टली राइट. चलो तो दिस वाज योर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. अब ये तो बोलते हैं बच्चों थ्योरेटिकल. अब इसके ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं दैट वी विल सी. ओके गाइस, अच्छा एक बात बताओ, न्यूमेरिकल तुम लोग सी हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. ठीक है, सी व्हाट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज लाइक दिस, कैलकुलेट द रिजल्ट. और कुछ इस तरीके से तुम लोग का डायग्राम दिया गया है. लाइक वी हैव अ रेगुलर हेक्सागोनल. ओके, व्हाट इज दिस रेगुलर हेक्सागोनल? A, this is B, this is C, D, E, F. और सपोज करो अपने को फाइंड आउट करना है, दैट इज AD प्लस DE. A पार्ट है हमारा, हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. B पार्ट अपने को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है AE प्लस ED. ओके, C पार्ट इज AD प्लस DE प्लस EB. ओके, सो वी हैव 3 पार्ट्स एंड वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट. एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करूंगा और रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं वो तुम लोग को एज अ होम असाइनमेंट सॉल्व करने हैं. यू गाइस विल सॉल्व देम एंड आई विल डू द डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास. क्लियर गाइस? ओके चलो ठीक है. अब यहां पे देखो कैसे सॉल्व करना है. सपोज करो AD और DE. सबसे पहले ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ रेगुलर हेक्सागन. पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ रेगुलर हेक्सागन. ओके, दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन. क्लियर गाइस? एज यू कैन सी कितने ट्रायंगल बच्चों इसमें बनता है, 1 2 3 4 5 6. तो रेगुलर का मतलब हो गया 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स विल बी देयर. क्लियर? इफ आई से यू कि रेगुलर हेक्सागन, इट सिंपली मींस 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स वुड बी देयर. क्लियर गाइस? ओके, सो सी हियर, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. ओके, रेगुलर ट्रायंगल. क्लियर? और सबकी लेंथ तुम्हारी क्या होगी, इक्वल. द लेंथ ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स वुड बी सेम. तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसे हम लोग कहते हैं रेगुलर हेक्सागन. नाउ सपोज इफ यू वांट टू ऐड AD प्लस DE, तो कैसे ऐड करोगे? देखो सबसे पहले AD क्या होगा, A से लेकर के D को जब मैं कनेक्ट करूंगा, दिस इज माय वेक्टर AD. क्लियर? AD प्लस DE. ओके, 10 मिनट. ये तो थोड़ा सा टेक्निकल हो गया यार.
ओके, डीए मत करो, डीई करो बच्चे, इसमें थोड़ा सा चेंज करो, एडी प्लस डीई कर लो। एडी प्लस डीए मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सो दिस इज माय वेक्टर एडी। अच्छा, व्हाट इज दिस एंगल? ये टोटल एंगल बच्चों, ये जो हर एक एंगल होता है, दिस ओवरऑल एंगल इज 120 डिग्री, सो दिस एंगल वुड बी 60 डिग्री। अच्छा, डीई कौन सा वेक्टर होगा? डी से स्टार्ट करो, ई की तरफ, दिस इज योर डीई वेक्टर। अब चलो इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं एडी से शुरू करता हूं। सो एडी वेक्टर इज समथिंग लाइक दिस, आई विल ड्रॉ, दिस इज माय वेक्टर एडी। व्हाट इज द एंगल ऑफ द एडी वेक्टर? एंगल ऑफ द एडी वेक्टर इज गिवन एज 60 डिग्री। ओके, व्हाट इज माय वेक्टर डीई? देखो डीई वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? माइनस एक्स डायरेक्शन। तो सेकंड वेक्टर मैं ड्रॉ कर दिया, दिस इज माय डीई वेक्टर। ओके, दो वेक्टर थे, दोनों को ड्रॉ कर दिए। नाउ व्हाट इज माय फाइनल स्टेप? I will connect the starting point to the ending point, guys. So see here, this is my starting point, this is my ending point. So I have connected my starting point to the ending point, and this will be the resultant vector R, which will be equals to AD plus DE. Clear? Simple है ना? जैसे इससे पिछले हमने किया था, in the same way हमने यहाँ पे भी इसको क्या किया है? Solve किया है. Now look at the board and tell me if anyone has any doubt. Right. No, it's crystal clear to everyone. Okay guys, so I hope it's clear to everyone. That's good. Answer is this. बस बच्चों डायग्राम ड्रॉ करना है, इसमें कोई न्यूमेरिकल अभी हमें नहीं चाहिए। न्यूमेरिकल कैसे फाइंड आउट करना है मैंने पहले कहा, that we will see in next class. Okay, so in this class I have solved A part, B और C. You are supposed to solve by yourself. B और C part बच्चों खुद से सॉल्व करना और सॉल्व करके मुझे बताना कि what is your answer. मतलब मैच करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में whether you have done it right or wrong. Okay guys, so we are ending today's lecture. A very happy Independence Day to all of you. और मिलिंद सर से वेरीफाई कर लेना like tomorrow we have class or not. In case अगर क्लास होती है तो we'll meet tomorrow. Otherwise we'll meet on Monday. Okay, happy Independence Day to all of you. बाय एवरीबॉडी, बाय टेक केयर। यार लेकिन इस बार तो मतलब लड्डू वगैरह तो मिलेंगे नहीं तुम लोग को, बिकॉज स्कूल्स आर क्लोज्ड। या श्योर एवरीवन। दीपांशु सर, न्यूमेरिकल्स विच टॉपिक? ओके मोहिनी बेटा, जस्ट टॉक टू मिलिंद सर, ठीक है? सी हियर ऑल द स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने लेट में ज्वाइन किया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिन स्टूडेंट्स ने लेट में ज्वाइन किया है they should talk to मिलिंद सर। बच्चों मिलिंद सर से बात करो टेस्ट पेपर के रिगार्डिंग, ओके? सर विल हेल्प यू आउट। चलो भाई, इन द एंड एट लास्ट अ वेरी जय हिंद, राइट? जय हिंद, जय हिंद। चलो बाय, टेक केयर।